गावां तू साहिब गुनी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकौ। तू ठाकुर ऊच भगवान। तुमरी महिमा बरन न साकौ। तू ठाकुर ऊच भगवान। वाहिगुरु साहिब जी। पातालां पाताल लख आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात। सहस 18 कहन कतेबा। असुलु एक तात। लेखा होए तां लिखीए लेखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। लेखा होए तां लिखीए लेखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल छतर चवर तख्त दे मालिक साहिब सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, वडभागे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीते। जुड़ बैठे हो इस वेले लड़ीवार चल रही जपजी साहिब दी कथा विचार श्रवण करन दे लई। अज दी ये पौड़ी जिहड़ी आप जी ने हुणे श्रवण कीती, ये जपजी साहिब दी 22वीं पौड़ी है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने इस पौड़ी दे अंदर की समझाया, की रहमतां बख्शियां, की उपदेश मेरे पातशाह जी ने इस पौड़ी दे अंदर दिता, ये सारा आपां अज विचारण दा यतन करना है। सतगुरु रहमत करन। विचारां दी आरंभता तो पहलां अपनियां मनोवृत्तियां नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी साझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी ये पावन पौड़ी जिथे गुरुदेव पातशाह जी ने इस पौड़ी दे अंदर बड़े भरम जिहड़े साडे अंदर पए सन, उन्हां भरमां दा नाश कीता है। क्योंकि साडे सारियां दे मनां दे अंदर एक गल भी वस गई कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे ने ये बचन कहे हैं। उन्होंने आख्या है कि लखां धरतियां हन ते लखां आकाश हन। असल विच असीं बाणी नूं पढ़दे जरूर हाँ, इस बाणी दे अर्थ, इस बाणी नूं समझण दा यतन जिहड़ा है वो बड़ा घट करदे हाँ। इस पौड़ी के अर्थ बड़े विद्वानां ने बड़े तरीके नाल कीते ने।
ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 99,99,999 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੰਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੰਖ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਹ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਗਾਸਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਨ। ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਦ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਦੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ
तो अगली पंक्ति में तो उन्होंने गिनती 18,000 दस दी। फिर तो गल बनेगी नहीं ना। सहस 18 कहन, कौन कहन? कतेबां। हुण समझ आएगी इस पौड़ी की बड़ी सौखी। असल विच बोल लिखे गुरु नानक पातशाह ने, पर लिख पहली उदाहरण वो दे रहे ने वेदां दी। उन्हें आख्या भाई वेद इहदे बारे वेद कहन एक वात दा भाव है इक्को जुबान नाल। वेद इस गल की गवाही भर रहे ने कि लखां धरतियां ने ते लखां आकाश हैं, लखां पताल ने। वेद कहन एक वात। फिर सहस 18 इहदा अर्थ है 18,000। सहस 1000 18,000। सहस 18 कहन कतेबां। कहते वेद कह रहे ने कि लखां गिनती है, तो कतेबां कह रही ने नहीं, इन्हां दी गिनती 18,000 है। हुण जे लखां दी गल हुंदी तो इसे पौड़ी विच ते गिनती 18,000 भी आ गई ना। वे जिहड़ियां कतेबां ने ना, ये इस्लाम ते ईसाई मत दियां जिहड़ियां 4 पुस्तकां ने ना, ग्रंथ ने जिहड़े, ये उन्हां नूं कतेबां कहा गया। कुरान अंजील वर्गे जिहड़े 4 इन्हां दे ग्रंथ ने। मेरे पातशाह ने आख्या भाई वो कह रहे ने 18,000 नहीं, लखां की गिनती ने उन्होंने कंडैम कर दिता। कहते लखां नहीं 18,000 ने। असीं ये भी पढ़िया, बड़ी बार सुनिया होएगा कि 7 आकाश ने तो 7 पताल ने। ये भी सुनिया है ना। 7 आकाश भाव 7 परतां ने आकाश दियाँ, यही कहांगे ना। 7 पताल 7 थल्ले होर परतां ने, ये कुल 14 हो गई, यही कहांगे ना आपां। मेरे साहब सच्चे पातशाह ने इत्थे, हाँ एक मैं थोड़ा जिहा इतिहास का जिक्र भी तुहाडे नाल करदा जावां। जिस वेले गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मक्के मदीने की यात्रा ते गए ना, बगदाद वाल गए, इस्लाम दे एक धर्म दे अस्थान हैं। उस वेले पहला मेरे पातशाह मक्के की धरती ते गए, अपने चरण पाए। उस तो बाद गुरु नानक साहब पातशाह मदीना, बगदाद, ये सारा इलाका सतगुरां ने घूमिया। जदों बगदाद गए ने ना, जिहड़ा असीं भाई गुरदास जी का बचन पढ़ते हैं, सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हैराना, ये उस वेले की घटना है। उत्थे गुरु नानक पातशाह ने मरदाने नूं आख्या सी छेड़ रबाब, ते ये पौड़ी जिहड़ी है ना पातालां पाताल वाली गाई सी मेरे बाबे ने। उत्थे दस्तगीर ने बोल कहे सन, उन्हें आख्या सी पातशाह ए गुरु नानक, इस्लाम कहंदा है 7 धरतियां ने 7 आकाश ने, ते तुसीं लखां कह दिता। जद कि गल इत्थे वेदां दी है। पौड़ी गाई ना गुरु नानक साहब ने। मेरी बेनती इत्थे समझियो, पहली वेदां दी गल, दूजी कतेबां दी, ते गुरु नानक साहब ने इहदे बारे की कहा वो भी विच दर्ज है। उन्हें कमाल कर दी जो धरतियां ते आकाशां दा जदों गुरु नानक साहब ने जिक्र किया। वो कहंदा जी तुसीं गा रहे हो लखां दे बारे। पातशाह ने आख्या भलिया उस कादर दी कुदरत जिहड़ी है ना, वो तो असंखां तो भी परे आ। लखां तो बहुत थोड़ा है, असंखां तो भी परे है। होया कि उदों? कहंदा जी असीं नहीं मनदे, मैं नहीं मनदा। भाई गुरदास जी ने उदों लिखिया, नाल लिया बेटा पीर दा, नाल लेता बेटा पीर दा। इहदा पीर दा मुंडा गुरु नानक साहब ने नाल लिया, भाव उहदा हत्थ फड़ लिया, बांह फड़ ली। उन्होंने कहते अखां मीट, उन्होंने कहते अखां बंद करे। भाई गुरदास जी के बचन ने, क्योंकि असी जो मर्जी कह लीए भाई गुरदास जी के बचनों तो मूँह नहीं फेर सकते। असी कहते नाल लेता बेटा पीर दा, अखी मीट गया हवाई। कहते अखां बंद कर, उन्हें अखां बंद कीतियां। हवाई का अर्थ है आकाश, अखी मीट गया हवाई। उन्होंने कहते अखां बंद कर, ते आकाशां दे अंदर मेरे पातशाह नूं लै गए। लख पताल आकाश, लख लखां धरतियां, करोड़ां धरतियां, करोड़ां आकाश।
एक अख के झमकण का समा कितना कुछ हुंदा है। असी अख बंद करके खोलते हैं, कुछ भी पास समा नहीं। इन्हें अंदर मेरे पातशाह ने सारी कुल कायनात विखा दी उहदे मुंडे नूं। ते इन्ने समय के अंदर पता की बचन अगले कहे, इन्ने समय के अंदर ही पातशाह कहते तेरे प्यो ने मनना नहीं, तू जाके दसेगा भी ना तो तेरे प्यो ने मनना नहीं। एक कटोरा लै इथों प्रशाद का भर के आपां नाल लैके जाने, विखाई उन्होंने मैं उत्थों लैके आया। जदों उत्थे गुरु नानक साहब बगदाद का जिक्र है, जदों सुन मुन नगरी भई वाली घटना हुई सी, मेरे बादशाह ने एक पल के अंदर उन्होंने सारा कुछ विखा दिता। इहदा भाव है कि बाबे नूं पता सी ना किन्नियां धरतियां किन्ने आकाश ने, की कुछ है। बाबे तो कुछ लुकिया थोड़ी सी, बाबे नूं सब पता है। खंडा ब्रह्मंडां की जानकारी रखदा है गुरु नानक मेरा बाबा। पर जदों इत्थे अर्थ करन की गल आई ना, वेदां ने क्या लखां हन, कतेबां ने क्या हज़ारां हन, पर जदों बाबे ने जिक्र किया उन्हें गल ही मुका दी सारी। लखां ने, हज़ारां ने या किन्नियां ने, फिर अर्थ आपां करते जाइए। साहब ने बचन कहे, कहते पातालां पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन इक बात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक धात। असलू एक धात, सारियां दा मुੱਢ इक्को ही है, परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख। चाहे वो लखां ने, चाहे वो हज़ारां ने, उन्हां दा बेस, उन्हां दा मुੱਢ जिहड़ा है ना, जिन्हां तो सब कुछ बनया वो एक है, परमात्मा जिहड़ा असलू एक धात। हुण आओ अगे जिहड़े गुरु नानक पातशाह दे बचन हन वो ये हन, पहला वेद फिर कतेब। हुण मेरे बाबे ने बचन कहे, कहंदे लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश। मैं सिर्फ पातालां आगास तक ही इस पौड़ी के अर्थ करांगे, इनू विशालता वाल नहीं लैके जावांगा, क्योंकि जिस गल का जिक्र है उहदे तक ही सीमित रहिए आपां। कहंदे लेखा होए तां लिखी है, कईयां ने इहदे अर्थ कीते ने परमात्मा का लेखा होए तो लिखिया जाएगा। पर मैं कहना इत्थे जे धरतियां ते आकाशां की गल है ना, तो बाबे ने आख्या भलिओ इस गल की कोई गिनती मिनती नहीं हो सकती कि वह किन्नियां धरतियां ते किन्ने आकाश ने। एक बंदे ने आख्या, विद्वान सज्जन सी, भला पुरख भी सी, उन्हें कहण दा अपना, हर किसी दे गल करन दा अपना तरीका हुंदा है, हर किसी दे। असी उदों विद्यालय विच पढ़दे सी, वो पढ़ चुकिया सी, आया एक दिन सानू मिलण वास्ते, बड़ा प्यार वाला बंदा सी, चढ़ाई कर गया। खैर ज्ञानी अरविंद सिंह उन्हां दा नाम सी। उन्हां बचन बड़े कमाल दे कहे, कहंदे कई बार लगदा इस गल ते आके ना गुरु नानक पातशाह ने भी हत्थ खड़े कर दिते, धरतियां पतालां ते। हौली हौली इन्हां गल्लां दी समझ आउंदी है, हौली हौली जाके। किसी भी असी कहीए कि एक दिन के अंदर विद्वान बन जावांगे, गल नहीं बनती। असी कहीए एक दिन के अंदर वेदां दे ग्रंथां दे ज्ञाता बन जाइए, ग्रंथी जिहड़ा वो ग्रंथां दा पढ़न वाला जानन वाला हुंदा, वो बन जाइए, पॉसीबल नहीं। मैं अज ये गल कहना कि असल विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने इस गल का जदों जिक्र किया है ना, वो जानते सन सब कुछ, उन्होंने पता है। पर वो नाल ये भी कह रहे हैं कि लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश। जे इस गल की गिनती मिनती हो सके कि किन्नियां धरतियां ने, तां ही दसिया जा सके, तां ही लिखिया उहदे बारे जा सके। क्यों? मेरे पातशाह ने तो 550 साल पहला लिखी ना ये गल, पर अज भी विग्यान इस गल नूं मन रहा है कि करोड़ां की गिनती के अंदर, अरबां की गिनती के अंदर, खरबां की गिनती के अंदर जिहड़े वो धरतियां ते आकाश हैं। आपां जिक्र कर रहे हैं गलैक्सीज किन्नियां ने, पता आपां नूं। ते विग्यान अज भी इस गल का जिक्र कर रहा है
कि रोज़ाना हज़ारां ग्रह खत्म हो रहे ने, नाश हो रहे ने, तो उन्हां दी जगह रोज़ाना हज़ारां ग्रह नवे भी बनते पे ने। कई तारे टुट रहे ने, खत्म हो रहे ने, कई नवे बन रहे ने। जे मैं गिनती करदियाँ जी 86,570 ने, समझना है, समझण वास्ते गल कर रहा भी इन्नियां धरतियां पताल ने, तो जिस दिन 4 खत्म हो गई उसकी जगह ते 10 नवियां बन गई, तो मैं गलत हो गया ना। ये तो ब्रह्मंड का पसारा है ना। पता नहीं किन्नियां गलैक्सीज ने जड़ियां ब्लैक होल के अंदर समाउंदियां जा रही ने, पूरी की पूरी गलैक्सी समा रही है ब्लैक होल अंदर। उत्थे करोड़ां ही खत्म हो गई एक पल के अंदर, तो पता नहीं उस परमात्मा की रज़ा के अंदर किन्नियां नवियां गलैक्सीज बन भी रही ने, ब्रह्मंड बन भी रहे हैं। असल विच बाबे नानक ने जिहड़ा जिक्र इत्थे कीता है ना, उन्हें आख्या भलिओ इत्थे ते पता नहीं किन्नियां रोज़ाना धरतियां बन रही ने, किन्नियां दा रोज़ाना नाश हो रहा है। लेखा होए तां लिखीए, लेखा होए विनाश। तो मेरे बाबे ने गल ही मुका दी। कहते मैं नहीं कहता कि लखां ने, मैं नहीं कहता हज़ारां ने, करोड़ां ने, किन्नियां है, पर मैं इस गल नूं जरूर जानदा, नानक वड्डा आखिया जिस वाहिगुरू परमात्मा नूं वड्डा कहने आ ना आपां, जिहड़ा है भी वड्डा, आपे जाने आप, ते जिन्ने बनाइयां ने वो आप जानदा है किन्नियां हैन ते किन्नियां नहीं। किड्डी कमाल करती मेरे बाबे ने। हुण गल ही गुरु नानक साहब ने खत्म कर दी। कहते जिन्हें बनाया है ना सारा कुछ, वो आप जानदा इन्हां दी गिणती मिणती दे बारे, क्योंकि उहदी रज़ा दे अंदर ही पता नहीं किन्नियां खत्म हो रही ने ते किन्नियां नवियां बन रही ने। फिर इस पौड़ी नूं मैं समाप्ति करन जा रहा, शुरू तो पढ़ के अर्थ करके समाप्ति करा। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन। वेद इको जमान नाल कह रहे हैं कि लखां धरतियां ते लखां पताल हैं। सहस 18 कहन कतेबां, कतेबां कह रही ने नहीं 18,000 इन्हां दी गिनती है। बाबे ने आख्या असलू एक धात मुढ़ सारियां दा एक है। फिर गुरु नानक दे अपने बचन आ गए, कहंदे लेखा होए तां लिखीए, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखीए आपे जाने आप। असल दे अंदर ये गल बड़ी कमाल दी है, बड़ी वड्डी है, बड़ी सियाणप वाली है, तो रहिंदी दुनिया तक ये गल कायम रह सकती है। लखां वाली भी खत्म हो जाएगी, हज़ारां वाली तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। ये गल टिकी रहेगी कि जिहड़ा बना रहा है वो जानदा है। नानक वड्डा आखीए आपे जाने आप, वो आप जानदा है किन्नियां धरतियां, किन्ने पताल, किन्ने खंड ब्रह्मंड हन। इत्थे की पता इस आकाश दे अंदर लखां दी गिणती विच ब्लैक होल ही होण जिहड़े इन्हां नूं खत्म कर रहे ने, नाश कर रहे हैं। आख्या वो आप जानदा है किन्ना कुछ है, ते किन्ना उन्हें बनाउणा है, किन्ना फनाह करना है। एक पल दे अंदर बनाउण वाला ते एक पल दे अंदर खत्म करन वाला है। ये सच्चाई है। वो तो एक पल दे अंदर इनू खत्म करके एक पल दे अंदर दोबारा साजण की समर्था भी रखता है। इस शब्द के जरिए, उहदे बोल के जरिए सतगुरु रहमत करन समा समाप्त है। देखो मैं अपने विचार कीते ने, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे विचार, मेरे कीते हुए अर्थ अखीरले हैं। बाणी आप भी पढ़िया करो, विचारिया करो, बड़ा कुछ समझ आएगा। सो इन्नियां को बेनतियां प्रवान होइयां, बेअंत भुल्लां दी खिमा करो, गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।